Yes, audible. All right. So, good morning, sir. Yeah, Aditya, sorry for the delay. Yeah, actually, at my side, there are some technical issues in the internet. Sure, sure. Actually, at my end also, unfortunately, just 5 minutes before internet Sure, went off, I am connected to my mobile, yeah, mobile sure, data. sure, sure, sure. All right, all right. Yes, Shreya, we can start now. Yeah, Yes, sir. yes. So, good afternoon, everyone. On behalf of Department of Information Technology and CSI, student chapter from St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology, I am delighted you all to this webinar on artificial intelligence, your secret to job success. It gives me immense pleasure to introduce our guest speaker, Mr. Aditya Jain, a CEO of Next Big Tech. We are also honored to have with us our respectful faculty coordinator, Jagdish Pimple, who has been constant source of guidance and encourage making this event possible. A very warm welcome to all the participants who have joined with us for the session. We are certain that today's session will be enriching and insightful for experience. Before starting, I just want to give some instruction for participants. Kindly keep your microphone mute throughout the session. In case you have any questions, you can just drop a comment in comment section. Uh, so moving forward. Mr. Aditya Jain is highly accomplished artificial intelligence expert who has mentored over 15,000 students. He is alumnus of IIT Bombay Computer Science and also secured AIR 60 in GATE. Professionally, he has also worked with the renowned organizations such as Amazon and Dream 11 as a data scientist. With the deep expertise in AI and his passionate for teaching uh, and his passion for teaching, Mr. Aditya Jain inspired thousands of aspiring students. Uh, Over to you all, sir. Okay, sure. Thank you so much. Can I start? Yes, sir, sure. Okay, great. So guys, I welcome you all to this wonderful session. Can you please quickly confirm if I'm audible and visible, maybe over the chat? Sir, Yes, you are you're audible. audible and visible. Okay, perfect. Thanks for confirming. Shall we keep it in English or Hindi English mix? Like, what are the preferences? Sir, Hindi, English both. Hindi English both? Okay, fine. ठीक है. Cool. So guys, first of all, I'm really happy that you guys have joined this session on a Sunday afternoon. Okay, 1 बज रही है तो afternoon है, morning नहीं है, ठीक है. तो yeah, तो basically we will make sure that it's totally worth it for you. तो before I start, मुझे ये जानना है कि like on the chat, what are your expectations? Like जब आप AI सुनते हो तो what are your expectations? कि क्या आपको एक दिन में ही chatbot and all बनाना सीखना है या is it like you want to gradually grow up in this field and you're looking at the long term view? Like what's the preferences? And let's keep it very very interactive. आप में से किसी ने अगर मेरे पहले sessions attend किए तो आपको पता होगा कि I keep it very very interactive because ultimately it's an interactive session, right? It's not a lecture where I'll be just speaking, right? तो let's keep it very interactive. आप लोग chat पे type करिए, feel free to do that. Don't hesitate.
just make sure that जो भी आप टाइप करो, it's relevant to what we are discussing. Okay, that's the only criteria. Learn it gradually. Okay, perfect, perfect, perfect. Anyone else? Because chat की frequency के basis पे I'll understand कि who are actually attending and कौन लोग सिर्फ वीडियो पे present है, but they are somewhere else. तो just type yes on the chat if you are ready to get started. चलो, अगर आपके questions नहीं है तो it's well and good. But everyone who is attending and listening to me, just type yes on the chat so that मुझे एक idea आ जाए कि कितने लोग actual में attend कर रहे हैं. Okay, great, awesome, ठीक है. So we have good amount of audience here. Perfect. ठीक है, awesome. अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने मेरे पहले सेशन, कोई भी सेशन यूट्यूब पे हो या आपके कॉलेज में हो या कहीं भी अटेंड किया है? इफ यू हैव अटेंडेड इट टाइप यस, इफ यू हैवंट टाइप नो. इससे मुझे एक आइडिया आएगा कि व्हाट इज द ऑडियंस लाइक. परफेक्ट. ओके, सो मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सम ऑफ यू हैव मेट मी बिफोर. ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस मुझसे पहली बार मिल रही है. ओके, ऑसम. तो चलिए मैं अपना एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ. ओके, सो गाइस, माय नेम इज आदित्य जैन. ओके, and I'm currently the founder and CEO of Next Big Tech, which deals with the IT solutions and AI upskilling. Okay. टॉकिंग अबाउट माई बैकग्राउंड, मैंने नागपुर से, तो बेसिकली मैं नागपुर से ही हूँ. ओके, एंड मैंने नागपुर से ही अपना बीटेक किया है. मैंने अपनी स्कूलिंग एसएफएस स्कूल से की है. शायद आप में से काफी लोग वहाँ से पढ़े हुए होंगे या आपको पता होगा एसएफएस स्कूल. वहाँ से मैंने अपना 10th तक के किया है. देन हिस्लॉप कॉलेज से मैंने अपना 12th कवर किया है. उसके बाद मैंने रामदेव बाबा कॉलेज से अपना बीटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस, विच वॉज फ्रॉम 2015 टू 2019. ओके, 4 साल का कोर्स. एंड देन मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपना एमटेक किया है फ्रॉम 2019 टू 2021. And 2021 onwards, I have been in the industry as a working professional, as a mentor, as a guidance, whatever you can call, okay, as an instructor. बहुत सारे रोल्स में मैंने वर्क किया है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर द अपॉर्चुनिटी इज एंड वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इज. ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ सो दैट आप में से काफी लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज को. ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में से सब लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर यही बैचेस को बिलोंग करते हैं. कैन यू जस्ट टाइप ऑन द चैट किस ईयर से आप बिलोंग करते हैं सो दैट मुझे एक ओवरऑल आइडिया आ जाए. Come on guys. And if possible, अगर आप ब्रांच भी मेंशन करो तो वेल एंड गुड. लाइक आप लिख सकते हो सीएस सेकेंड ईयर, एमटेक, सॉरी मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, एनीथिंग लाइक दैट. सीएस आईटी. ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्टली सब आईटी के ही होंगे. ओके, फोर्थ ईयर आईटी, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर. बहुत बढ़िया. तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ फर्स्ट ईयर से काफी स्टूडेंट्स हैं. And I'm really happy क्योंकि first year is the perfect year to get started with your upskilling journey. Okay, CSE IT, awesome. ठीक है, तो आप में से काफी लोग काफी रिलेट कर पाएंगे एंड आपके लिए काफी यूजफुल सेशन होगा. ठीक है, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ. तो अनफॉर्चुनेटली जस्ट आपके सेशन के 10 मिनट पहले मेरे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गया. आई डोंट नो इतनी इतनी परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैसे प्रॉब्लम आ गई, एंड इट टर्न्ड डाउन. सो आई वाज जस्ट contacting the network person, but it's not. तो मैं मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन कर रहा हूँ, बट कभी भी अगर आपको डिले होता है या कभी भी लैग होता है तो प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू गेट इट फिक्स्ड. ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया एकदम से. ओके, बफर होता है, लैग होता है, जो भी होता है, यू गाइस कैन लेट मी नो ऑन द ग्रुप. इज दैट ओके? ठीक है, कोई भी आपको सरप्राइजिंग नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पहले से डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ. ठीक है, ऑसम, परफेक्ट. ठीक है, ओके. तो दोस्तों लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन. ओके, ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लाइड्स, मैं तो, मेरा प्लान था कि मैं बिना स्लाइड शेयर कर ही आज का सेशन दूं, बट देन आई थॉट कि लेट्स मेक फ्यू सो दैट आपके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो. ओके, तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. ओके, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन गाइस? एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन. ऑसम, ठीक है. तो अभी तो मैं जैसे अपने घर से दे रहा हूँ सेशन, ऑफिस से नहीं हूँ, तो मेरे पास एक ही स्क्रीन है. ओके, मैं अपने लैपटॉप से ही दे रहा हूँ. तो अगर कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट एबल टू लिसन टू मी, ओके, अनम्यूट करके मुझे बता देना, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे मेरी स्लाइड्स दिख रही है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू सी द चैट. ऑल्दो मैं बीच बीच में
आपकी चैट्स देखते रहूंगा, सो टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो अगर कभी भी कुछ लैग होता है या कुछ भी होता है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ओके, whoever the coordinator is, and you can directly let me know, okay। चलिए, perfect। So let's get started. So as I told, my name is Aditya Jain and I'm the founder and CEO of Next Big Tech, जो कि एक IT firm है, and it's established in Nagpur itself. I have secured All India Rank 60 in GATE Computer Science, and I've done my MTech from IIT Bombay, which was my dream college. And before this, I worked at Amazon. So Amazon मेरी career की सबसे पहली job थी, which was kind of my dream job back then. ठीक है, अभी तो ऐसे कोई dream job है नहीं मेरी, but जब dream job थी, तो that was my very first job. After that, from IIT Bombay, I got selected at Dream11 as a data scientist, which was one of the most amazing work experience that I've ever had. And I've also worked as a senior instructor and ML engineer at Scalar. आप में से कितने लोगों को स्केलर एकेडमी पता है? बिकॉज इट्स वेरी मच रिलेवेंट टू द अपस्किलिंग साइड, एंड आप लोग भी काफी रेलेवेंट ऑडियंस हो इफ यू आर हियर टू अपस्किल योरसेल्फ, ठीक है, ओके, चलिए, परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट मी इन अ बिट डेप्थ, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है रामदेव बाबा कॉलेज से, एंड आई हैव मेंटेन्ड अ सीजीपीए ऑफ 9.09 आउट ऑफ 10। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं जब बीटेक में था, आई गेस सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो गूगल डीएससी करके एक गूगल ने आई वुड से प्रोग्राम लॉन्च किया था, एंड आई वाज वन अमंग द 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम नागपुर जो इसका पार्ट था, एंड आई वाज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम माय इंटायर कॉलेज who represented Google DSC at Goa। ठीक है, गोवा में उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था, एंड आई वाज द कैंपस रिप्रेजेंटेटिव फॉर दैट। आई वाज द ओनली स्टूडेंट फ्रॉम द इंटायर कॉलेज टू गेट एन इंटर्नशिप एट Amazon। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एज अ एसजी इंटर्न Amazon में काम किया है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 60 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। तो हमारे टाइम, अभी तो आप थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हो, फोर्थ ईयर में भी दे सकते हो, बट हमारे टाइम सिर्फ थर्ड ईयर में ही देना अलाउड था। तो आई वाज अ सिटी टॉपर एज वेल, ओके, यानी मेरा पूरे नागपुर सिटी में सबसे ज्यादा बेस्ट रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 60। एंड आई गेस कि आई वाज द ओनली अंडर 100 रैंकर फ्रॉम नागपुर, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ, हाईएस्ट रैंक मेरा था। मेरा इंटरव्यू वगैरह भी हुआ था न्यूज़पेपर में, फोटो वगैरह भी आई थी, तो इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी मूवमेंट बैक देन, ओके। देन आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे फॉर माय मास्टर्स, ओके। ऑनेस्टली मेरा हमेशा से ही एक गोल था, एक ड्रीम था कि मैं स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे जाऊँ। ऐसा भी नहीं था कि कोई भी आईआईटी चले जाऊँ, ऐसा नहीं था कि आईआईटी दिल्ली जाना है या आईआईटी मद्रास जाना है, स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे जाना था, ओके। बिकॉज बीटेक में बहुत मेरे ड्रीम्स थे, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस जो मैं अचीव नहीं कर पाया। तो बट मेरे को हमेशा से आईआईटी बॉम्बे जाना था, एंड दैट्स व्हाई आई 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 सिलेक्टेड आईआईटी बॉम्बे। मेरे पास आईआईसी बैंगलोर से भी ऑफर था। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ आईआईसी बैंगलोर? कितने लोगों ने कॉलेज का नाम सुना है? बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड कॉलेज ऑफ नागपुर, सॉरी, ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट नागपुर, ओके, या, awesome. Yeah, someone wants to speak, I guess. Someone has raised hand. Yeah, you can go ahead. Okay, I think, okay, it was by mistake. Okay, got it. Okay, perfect. Then when I was working at when I was studying at IIT Bombay, okay, I specialized in data science। जब तो AI ऐसे अलग सा फील्ड नहीं बोलते थे, आप सभी को डेटा साइंस बोलते थे। तो मैंने अपने करियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर, विच इज 9.36 आउट ऑफ 10, ओके, दिस वाज माय सीजीपीए एट IIT बॉम्बे, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे लाइफ में इतने ज्यादा मार्क्स कभी नहीं आए हैं। मेरे टेंथ में आई गेस 90.36 आए थे आउट ऑफ 100 परसेंटेज। मेरे ट्वेल्थ में 82 आए थे। मेरे बीटेक में 9.09 आया था, एंड मेरे करियर में सबसे ज्यादा आईआईटी बॉम्बे से ही मैंने स्कोर किया है, वो जो कि है 9.36 आउट ऑफ 10, ओके। तो ये काफी काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे वाज द टफेस्ट पार्ट, टफेस्ट एजुकेशन दैट आई हैव एवर डन इन माय करियर, एंड मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स भी वहीं से आए। तो मे बी इट्स द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड इट्स द इफेक्ट ऑफ द नॉलेज, जिससे मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो गए, ओके। Then I have published multiple research papers in well-known conferences, okay, and yeah, तो जैसे कि डेटा साइंस फील्ड में मैंने काफी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। आई हैव रिसीव्ड द एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो ये अवार्ड
का क्राइटेरिया ही ये होता है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 लाना होता है आपके मास्टर्स थीसिस में। ओके, इसका ग्रेड है आपका वो है क्या बोर्ड में Excuse post me, sir. that you get in the day. Sir, sir, you are not audible. I'm not audible. Can you please confirm? Guys, I'm not audible. No, sir. Okay. Give me a second. From my side, audible. Excuse me, sir. You are not audible. There is a lag between. Okay. Am I audible and visible now? Yes, yes. Now you are visible and audible. ओके परफेक्ट। हाँ तो एक्चुअली द गुड न्यूज़ इज कि माय नेटवर्क इज बैक, तो शायद इसलिए वो रीस्टार्ट हो गया था। ठीक है परफेक्ट। प्लीज कंफर्म कर दो, नाउ आल्सो ऑडिबल एंड विजिबल। Yes, sir. Now Yes, you are. yes. ठीक है चलो ऑसम। Okay. Then I mentored and upskilled around 15,000 plus working professionals in the field of AI. ठीक है, and I'm the founder and CEO of Next Big Tech. Okay, which is presenting you the content for today. Okay. तो आज हम क्या क्या चीज की बात करने वाले हैं। आई कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प एंड वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब कॉलेज में सेशंस अटेंड करता था तो मेरा एक्सपीरियंस काफी ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बता के चले आते थे, बट उसमें से कुछ भी चीजें यूजफुल नहीं होती थी। तो दैट्स व्हाई आई मेक श्योर कि जब भी मैं कॉलेज में कोई टॉक दे रहा हूँ वो काफी इंटरेक्टिव हो, काफी प्रैक्टिकल हो एंड स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल हो। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी एआई के बारे में एक इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। हम उसका हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि आप में से काफी लोग डायरेक्टली चैट जीपीटी से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जब मैं आईआईटी बॉम्बे था, आईआईटी बॉम्बे में था, तो मैंने काफी स्क्रैच से स्टार्ट किया था। ओके, तो उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। की कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ जनरेटिव एआई की बात करेंगे, जो कि जेन एआई का फुल फॉर्म है, जनरेटिव एआई। पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आई वांट टू कीप इट वेरी प्रैक्टिकल। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके वो यूज में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आप यूज में ला सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट दैट। I'll talk about what is the future of generative AI. Although जो future है वो already present बन चुका है, क्योंकि इतने frequently changes होते हैं कि जो last month future था वो आज present बन चुका है। तो I'll talk about that as well. Okay. तो पहले तो ये बता दो, are you guys really super duper ready and excited for it? एक जल्दी से comments में जल्दी से yes or no बता दो, so that we can get started with the actual content part of it. Okay. चलो बहुत बढ़िया, I'm really happy about it and I'm excited as well. Okay. चलो ओके, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो एआई एनेबल्स मशीन्स टू परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क्स इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी। ओके, इसका मैं आपको एक बहुत शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने जो चैटबॉट्स होते हैं, जैसे आपके स्विगी पे चैटबॉट होता है, ओके, आपके बैंकिंग सिस्टम्स में चैटबॉट होते हैं, आप में से कितने लोगों ने वो यूज किया है? जब वो आपको बोलता है कि सिलेक्ट आपकी प्रॉब्लम क्या, इनवॉइस से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, ओके, आपको एक ड्रॉप डाउन आता है। आपने किसी ने भी इस तरीके का चैटबॉट यूज किया है? यूज्ड, ओके परफेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसको स्मार्ट बोलोगे? वो जो चैटबॉट होता है जिसमें एक ड्रॉप डाउन आता है, फिर आप एक ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते हो, या आप जब कॉल करते हो किसी भी कॉल सेंटर पे, तो वो आपको ऑप्शन देता है, ये हिंदी में बात करने के लिए वन दबाओ, इंग्लिश में बात करने के लिए टू दबाओ। तो क्या आप उसको एक स्मार्ट सिस्टम बोलोगे? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज को लेके? विल यू कॉल इट अ स्मार्ट सिस्टम? विल यू कॉल इट एआई? नो। क्यों क्यों आप इसको एआई क्यों नहीं बोलोगे? वो भी तो एक वो भी तो एक कंप्यूटर से ही चल रहा है, सो व्हाई नॉट एआई? देयर आर फिक्स्ड आंसर्स। बहुत बढ़िया।
awesome. It's pre-programmed. Very good. Pre-programmed नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको इनपुट दे रहे हो तब जाके वो वर्क कर रहा है. इट्स नॉट अ वीडियो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. लेकिन हाँ, हम ये बोलेंगे कि इट्स फिक्स्ड इन नेचर. ठीक है, कि अगर मैं ये एक्शन लूंगा तो ये आउटपुट होना चाहिए. इट्स फिक्स्ड इन नेचर. ठीक है. उसी तरीके से जब हमारे कॉलेज में एग्जाम होती है, ठीक है, आप किस स्टूडेंट को स्मार्ट बोलोगे, जिसको बस ये पता है कि 1+1 2 होता है, या आप उस स्टूडेंट को स्मार्ट बोलोगे जिसको किसी भी दो नंबर को ऐड करना आता है? हु इज द स्मार्ट पर्सन, हु इज द इंटेलिजेंट पर्सन? जिसको सिर्फ 1+1 2 करना आता है, या जिसको कोई भी दो नंबर्स को ऐड करना आता है? ऑब्वियसली द सेकेंड वन. ठीक है. तो उसी तरीके से दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि किसी भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज को आज एआई बोला जाता है. ठीक है. एंड ये हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि यार हम एआई में काम कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में एआई नहीं होता है, वो बस एक सिंपल प्रोग्रामिंग होती है. ठीक है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्टिफिशियल जो वर्ड है वो कंप्यूटर के कारण है. ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस नहीं है, कंप्यूटर है. एंड इंटेलिजेंस, ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस जब कंप्यूटर परफॉर्म करता है, दैट मेक्स इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, कि क्या चीज को एआई बोलना है, क्या चीज को सिंपल कंप्यूटर साइंस बोलना है. तो ये पार्ट क्लियर है. ठीक है. तो एआई एनेबलिंग मशीन टू थिंक लाइक ह्यूमन. मशीन जब ह्यूमन जैसे सोचते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एकदम सिंपल. सबको ये पार्ट क्लियर है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एआई क्या है. रूल बेस्ड को हम एआई नहीं बोलेंगे. जो हम हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश को 2 दबाओ, उसको हम एआई नहीं बोलेंगे. ओके. ठीक है. ऑसम. जनरेटिव एआई क्रिएट्स टेक्स्ट, इमेजेस एंड मोर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज. ओके. तो इसलिए उसको जनरेटिव एआई और जेन एआई बोलते हैं, बिकॉज इट इज यूज फॉर जनरेटिंग कंटेंट. चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, आजकल तो वीडियोस भी होते हैं, आपके एड्स क्रिएट हो रहे हैं एआई को यूज करके. तो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ जेन एआई. एंड इंजीनियर्स कैन यूज एआई फॉर ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डिजाइन. ठीक है. आप में से काफी लोग देखते होंगे कि क्रिएटिविटी के लिए, आप कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करते हो एआई को. आप ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो, जो एक रेपिटेटिव टास्क है. आप रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जब आपको किसी भी स्टॉक का रिसर्च करना है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, तो यू कैन ऑल्सो यूज एआई फॉर दैट. एंड वी इंटरेक्ट विद एआई डेली थ्रू चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स एंड रिकमेंडेशन. ठीक है. तो नोइंगली और अननोइंगली आप ऐसे काफी सारे एआई टूल्स और एआई चैटबॉट से इंटरेक्ट कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग कि दिस इज पार्ट ऑफ एआई. ओके. तो चलिए एक एक करके बात करते हैं. पहले इवोल्यूशन ऑफ एआई एंड जनरेटिव एआई की बात करते हैं. ठीक है. लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल. तो एआई स्टार्टेड विद रूल बेस्ड सिस्टम दैट फॉलोड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस बट कुडंट लर्न फ्रॉम डेटा. ठीक है. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द डिस्टिंक्शन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. कितने लोग रिलेट कर सकते हैं इससे? बाय द वे, आई विल जस्ट हैव सम वाटर. बट हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस स्टेटमेंट? क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में ये स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है. रूल बेस्ड सिस्टम. तो पहले के लोग जो हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश के लिए 2 दबाओ, इस टाइप के सिस्टम को भी एआई बोलते थे. ठीक है. बट दीज वर रूल बेस्ड सिस्टम. रूल बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं कि हमने उसको रूल दिया गया है कि अगर 1 प्रेस होता है तो आपको ये एक्शन लेना है, 2 प्रेस होता है तो आपको ये एक्शन लेना है, एंड सो ऑन. ठीक है. लेकिन इट वॉज नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम डेटा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चे की जर्नी देखते हो, ठीक है, एक 2 साल का बच्चा है मान लो, हाउ दैट किड लर्न्स, कोई बताना चाहेगा? अगर आपने किसी छोटे बच्चे की ग्रोथ देखी है, ऑब्वियसली आप भी बच्चे थे और आप ग्रो हुए हैं, लेकिन अगर आपने एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से किसी बच्चे को ग्रो होते हुए देखा है, तो हाउ डज दैट किड लर्न्स? कैसे होता है वो प्रोसेस, क्या होता है उसका? ऑब्जर्वेशन. ओके. ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट? बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स. ओके. लिसनिंग. ओके. परफेक्ट. देख कर, सुनकर. ओके. ऑसम. परफेक्ट. ठीक है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ डेटा. ठीक है. जो आप एक्शंस बोल रहे हो, जो आप इंटरेक्शन बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो कि सुन के, जो आप बोल रहे हो कि देख कर, कैन आई से दिस इज ऑल्टरनेटिव टू डेटा. अगर आप एक मशीन को पास्ट ह्यूमन इंटरेक्शंस का डेटा दे देते हो, इट्स सेम एज आप मैपिंग समझ पा रहे हो 1-on-1, कि जो एक बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, वो एक मशीन डेटा को इनपुट लेकर सीख सकता है. आपको ये 1-on-1 मैपिंग समझ रही है कि हाउ
is artificial intelligence behaving like humans? ठीक है, आप जो एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो डेटा देते हो, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू जो आप सीखते रहते हो अपने बैकग्राउंड से, अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है। So this is where the intelligence part comes into picture, where you're learning from data. This learning from data part was missing in the rule-based system. Okay, and this is what differentiates AI from normal computer science. Okay, so machine learning introduced models that could recognize patterns in data and improve over time. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, आप लोग ने भी पैटर्न्स ऑब्जर्व किया कि यार मैं ये करता हूँ तो मुझे चॉकलेट मिलती है, बट अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे डांट पड़ती है पेरेंट्स से। आप लोग ने भी बचपन में पैटर्न्स ऑब्जर्व किए होंगे, राइट, एंड उससे आपने सीखा। आप समझ पा रहे हो कितना ऑब्वियस है एआई, ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा ऑब्वियस है अगर आप उसको ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से मैप करो तो। आपने भी कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करे एंड देन आपने उससे सीखा। सिमिलरली जब आप डेटा देते हो तो आपका मॉडल भी डेटा में से पैटर्न्स ऑब्जर्व करके उससे कुछ सीखता है एंड इम्प्रूव करता है, ठीक। Deep learning, which was inspired by human brain, allowed AI to process complex information like speech and images. Okay, तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क का। कितने लोगों ने न्यूरल नेटवर्क पहले सुना है? आई एम अज्यूमिंग कि सबको न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पता है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा एमटेक थीसिस था, इट वाज इन द फील्ड ऑफ न्यूरल नेटवर्क, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ठीक है। किसी को जीपीटी का फुल फॉर्म पता है क्या? जीपीटी, एनीवन हु इज अवेयर ऑफ जीपीटी फुल फॉर्म? जो जो भी आपको पता है बताइए। जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर, ओके, शिवम गुप्ता ने बोला है। एनीवन एल्स? व्हाट इज जीपीटी फुल फॉर्म? जनरेटिव टेक्स्ट, ओके, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, वेरी गुड। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इस टर्म पे, इस आर्किटेक्चर पे मैंने अपना एमटेक थीसिस किया है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर किसी ने अगर सुना होगा तो ये न्यूरल नेटवर्क्स का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में जब आप बहुत ज्यादा रिसर्च करके आगे जाते हो तो दिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कम्स इनटू पिक्चर। ये गूगल ने इन्वेंट किया है, ठीक है। गूगल का एक पेपर है, आप जाके जरूर पढ़िएगा। मैंने अराउंड वो 12 से 15 बार उस पेपर को पढ़ा होगा मिनिमम, जिसका नाम है अटेंशन इज ऑल यू नीड, ठीक है। ये मेरे एमटेक थीसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसके लिए मुझे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। तो अटेंशन इज ऑल यू नीड में गूगल ने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को आई वुड से प्रेजेंट किया था पूरे वर्ल्ड को, एंड इस पर बेस्ड ये जो ट्रांसफॉर्मर वर्ड है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट पेपर, ठीक है। ये कि गूगल ने ये इन्वेंट किया था ट्रांसफॉर्मर टर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ओके। Generative AI involves technologies like transformers enabling AI to generate realistic content, ठीक है, and the launch of models like ChatGPT which can engage in human-like conversations marked a major breakthrough. तो दोस्तों होता क्या है कि ChatGPT को लोग एज एन ऑल्टरनेटिव टू AI यूज करते हैं, एज एन ऑल्टरनेटिव टू GPT यूज करते हैं, ठीक है। तो ChatGPT इज लाइक बिस्लरी, कि आप कभी भी बाहर खाने जाते हो और आपको पानी चाहिए होता है तो आप बोलते हो यार एक बिस्लरी दे दो, ठीक है। बट इज बिस्लरी द ओनली वाटर बॉटल ब्रांड अवेलेबल, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल? नहीं, आपके बहुत सारे डुप्लीकेट भी आते हैं, बिलसेरी भी आती है, राइट, एक्वा एक्वा भी आता है, बहुत सारे आते हैं, किनले आता है, राइट, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। बट बिस्लरी इज अ टर्म यूज क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेमस है, ओके, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। उसी तरीके से चैट जीपीटी इज द प्रोमिनेंट जीपीटी विच was introduced to humans। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जीपीटी चैट जीपीटी होता है, ठीक है। चैट जीपीटी इज वन ऑफ द टूल्स। कोई मुझे बाकी टूल्स बता सकता है ऑल्टरनेटिव टू चैट जीपीटी? कम ऑन, आप लोग डे टू डे पे यूज करते होंगे, अपने असाइनमेंट्स में हेल्प के लिए यूज करते होंगे। क्लॉड, वेरी गुड। परप्लेक्सिटी, डीप सीक, ओके, जेमिनी, जेमिनाई, राइट, ओके, परफेक्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज की, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको जो कीवर्ड्स है उसके बारे में बात करूंगा। तो एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीप लर्निंग, इसमें मैं एक बहुत क्लियर आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 2-3 साल से कम है तो आपके लिए सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2-3 साल से कम है तो एवरी फील्ड, चाहे वो एआई हो, चाहे वो एमएल हो, चाहे वो डीप लर्निंग हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो,
आपके लिए सब कुछ सेम है, क्योंकि जब आप करियर स्टार्ट करते हो आप सबके कॉम्बिनेशन पे काम करते हो, ठीक है। बट जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तब ये स्पेसिफिकेशंस आपके लिए डिफरेंट होते हैं। फिर आपके लिए डेटा इंजीनियर अलग होता है, डेटा साइंटिस्ट अलग होता है, डेटा मशीन लर्निंग इंजीनियर अलग होता है, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट अलग होता है। सब कुछ बहुत स्पेसिफिक हो जाता है फिर, ठीक है। तो एआई बहुत ब्रॉड डोमेन है। ओके, मशीन लर्निंग is specifically the part which learns pattern and deep learning uses neural network। तो जहाँ भी न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन को मैप करने की बात आ जाती है, वहां पर डीप लर्निंग का काम आता है, ठीक है। जनरेटिव वर्सेस प्रेडिक्टिव पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर। ट्रांसफॉर्मर्स एंड एलएलएम्स कोर एआई मॉडल्स है फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जो आपका डोमेन होता है, उसमें ये सब लाई करते हैं, ठीक है। एंड फाइन ट्यूनिंग इज नथिंग बट अडेप्टिंग एआई मॉडल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो क्या आपने ये देखा है कि चैट जीपीटी जो है वो इमेजेस के साथ भी काम करता है, बट कैन यू नेम सम स्पेसिफिक टूल्स जो एआई के जो इमेजेस के साथ काम करते हैं? चैट जीपीटी भी आपका इमेज के साथ काम कर सकता है, लेकिन देर आर सम स्पेसिफिक टूल्स जिनको हमने बनाया ही एआई के लिए, सॉरी इमेजेस के लिए है। अभी रिसेंट में एक बहुत फेमस टूल लॉन्च हुआ है गूगल के थ्रू। कौन सा है वो? अगर आप फॉलो करते हो एआई को तो वेरी गुड, काफी बढ़िया बढ़िया नाम आ रहे हैं। बनाना मॉडल, ठीक है, बनाना मॉडल भी आपने सुना होगा, ठीक है, नैनो बनाना, करेक्ट। ओके, चलिए ऑसम। तो दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग, जब आप स्पेसिफिकली एक टास्क के लिए किसी चीज को ट्रेन करते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल यूसेजेस ऑफ जनरेटिव एआई, इस पर मेरा काफी ज्यादा फोकस होगा। तो टेक्स्ट जनरेशन, ओके, आपको ईमेल्स लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है, समराइज करना है, ठीक है। अगर आपको एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट को समराइज करना है, एक बहुत बड़े पॉडकास्ट को समराइज करना है, ठीक है, आपने ऐसे टूल्स देखे होंगे। ये सब टूल्स के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द जनरेशन। कोड जनरेशन, एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट्स, जैसे कि आपका को पायलट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग को पायलट यूज करके काफी अच्छी कोडिंग कर रहे हैं, तो दैट यूज फॉर कोड जनरेशन। इमेज एंड वीडियो क्रिएशन की अगर बात करी जाए, तो एआई जनरेटेड डिजाइन, आपको पता है नैनो बनाना का आपने ही खुद ने एग्जांपल दिया है। चैटबॉट्स, तो कस्टमर सपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑल दीज डोमेन्स इंटरेक्ट विद चैटबॉट्स। इनफैक्ट मेरे पास एक चैटबॉट है जो मैंने खुद से डिजाइन किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। And engineering applications like designing circuits, predicting system failures and automating repetitive tasks, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जहां भी ऑटोमेशन हो सकता है वहां यू कैन यूज एआई, ओके, टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल। Moving ahead to some popular to some popular generative AI tools and platforms, okay। इसके लिए मैं आपको एक 65 प्लस एआई टूल्स की लिस्ट देने वाला हूँ, जो कि मैंने डे टू डे बेसिस पर यूज किया है एंड खुद के लिए क्रिएट की थी, बट मैंने सोचा कि यार लेट्स मेक इट अवेलेबल टू द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बट अभी मैं सिर्फ कुछ वेरी वेरी फेमस टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला आपका ऑब्वियसली चैट जीपीटी है। इट वॉज डेवलप्ड बाय ओपन एआई एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एआई चैटबॉट्स फॉर कन्वर्सेशंस, रिसर्च एंड ऑटोमेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि एवरीथिंग in some form, okay, everything which is actually generating or predicting something is in some form AI, ठीक है। लेकिन ये जो आपका चैट जीपीटी है, ठीक है, इट 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 प्रेजेंटेड इट इन अ ह्यूमन इंटरेक्टेबल मैनर, ठीक है। इसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ आप एज अ ह्यूमन इंटरेक्ट कर सकते हो बॉट के साथ, चैट बॉट के साथ, ओके। तो दिस इज व्हाट मेड इट फेमस। वहां से एक ह्यूमन टच आया, एज इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद अ ह्यूमन, ठीक है। गूगल बार्ड एंड क्लॉड, जैसे कि आप में से काफी लोगों ने नाम दिया। गूगल बार्ड has been renamed to Gemini, but obviously I keep the same name because it is the name it was invented with. Okay. So other AI-powered chatbots with different strengths in reasoning and knowledge retrieval. Open source LLMs like Mistral and Falcon. Okay. ये भी काफी ज्यादा फेमस है, आप में से काफी लोगों को पता होगा। This is specifically for developers. Okay, जो कोडर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल टूल्स है। एआई कोडिंग असिस्टेंट्स में आपको मैंने को पायलट ऑलरेडी बता दिया है, ओके। एंड कोड विस्पर भी यू हैव, व्हिच इज एआई पावर्ड टूल्स दैट हेल्प प्रोग्रामर्स राइट एंड डीबग कोड फास्टर, ठीक है। मैंने काफी सारे एप्लीकेशंस क्रिएट किए हैं को पायलट यूज करके एंड आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ दीज टूल्स। ऑल्दो मुझे बहुत अच्छे से कोडिंग आती है, बट इट हेल्प्स मी अ लॉट टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। टेक्स्ट टू इमेज के लिए जैसे कि आपने कहा था, मिड जर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन है, नैनो बनाना आ चुका है, ठीक है। सो ऑल दीज आर एआई टूल्स फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस, ओके। आप में से कितने लोगों ने इन टूल्स के कहीं ना कहीं नाम सुने हैं? कैन आई हैव अ क्विक यस और नो?
so that ऐसा ना हो कि मैं खुद ही से बात कर रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए कि आप लोग भी समझ रहे हो साथ ही साथ में। awesome, चलिए बहुत अच्छी बात है। awesome, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, एंड आई होप कि आपने यूज भी किया है, सिर्फ सुना नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स गेट अहेड। अब बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, द फ्यूचर इज ऑलरेडी द प्रेजेंट, ठीक है। रोज जो फ्यूचर होता है वो प्रेजेंट बन चुका होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बहुत ब्रॉड लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो मल्टी मॉडल एआई जो है, ओके, विच इज कंबाइनिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियो ऑल टुगेदर एट वंस। तो जैसे कि आपके कुछ टूल्स है जो बहुत फेमस है ऑडियो के लिए, कुछ बहुत फेमस है वीडियो के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप लोग नागपुर से हो, तो मैं आपको जब भी आलीशान नाम लेता हूँ मैं, ठीक है, अगेन मैं किसी ब्रांड की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट जब भी मैं आलीशान नाम लेता हूँ, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, बताइए। क्योंकि आप सब लोग नागपुर से हो मोस्टली, तो आप लोग काफी रिलेट कर पाओगे इस एग्जाम्पल से। आलीशान जब भी मैं नाम लेता हूँ, कुछ आपको क्लिक होता है क्या एकदम से? ओके, फैशन, ठीक है, विद इन फैशन कुछ स्पेसिफिक चीज क्लिक होती है, क्या होती है बताइए। क्लोथ स्टोर, क्लोथ, एथनिक, ओके, स्पेसिफिकली एथनिक फैशन, वेरी गुड। तो आपको एक बहुत स्पेसिफिक चीज क्लिक होती है कि यार अगर शादी वगैरह के कपड़े की शॉपिंग करनी है तो हमें आलीशान तो विजिट करना ही है। डू यू अग्री? शेरवानी, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको जब भी एथनिक, शादी से रिलेटेड जो भी आपको कपड़ों की जरूरत होती है, तो आपके दिमाग में आलीशान होता है, या आलीशान आपके दिमाग में आता है तो आपको ये ब्रांड की वो होती है। अब क्या आलीशान आपके कॉलेज की यूनिफॉर्म नहीं बना सकता? क्या आलीशान आपके लिए टक्सीडो वगैरह नहीं बना सकते? कांट दे डू इट? दे कैन, राइट? बट दे आर क्रिएटिंग देयर ब्रांड इन अ स्पेसिफिक नीश, ठीक है। वो चाहते ही है टू बी नोन फॉर अ वेरी वेरी स्पेसिफिक नीश, इसलिए दे आर कीपिंग देमसेल्व्स टू एथनिक स्पेसिफिक, ताकि जब भी आप स्पेसिफिकली शादी की बात सोचते हो या किसी भी इवेंट की बात सोचो जिसमें एथनिक वेयर्स की नीड होने वाली है, तो आपके दिमाग में आलीशान होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों, मल्टी मॉडल एआई क्या है कि जब आप स्पेसिफिक टास्क, जैसे नैनो बनाना आपने स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट किया है, चैट जीपीटी आपका एक टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, तो फ्यूचर इज गोइंग टू बी कंबाइनिंग एवरीथिंग इनटू वंस इन द मोस्ट अमेजिंग मैनर। अब ऐसी बात नहीं है कि चैट जीपीटी एआई इमेजेस से काम नहीं कर सकता, इट कैन, but it is not specialized for that, okay. So multimodal AI is more about you are dedicating that task to someone who is good at it, okay. Similarly AI agents, which is autonomous AI performing complex task, तो क्या आपने सुना है कि there are tools जिससे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके उसको बोल सकते हो कि यार बुक द फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम दिस सिटी टू दिस सिटी, एंड वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स विजिट करेगा, आपके लिए सबसे चीप फ्लाइट्स फाइंड करेगा, जो भी आपने उसको टास्क दिया है, बुक करेगा, आपसे ओटीपी लेगा, ओके। सो देयर आर सच टूल्स विच आर autonomously performing complex tasks, okay. Engineering AI innovations in robotics and design optimization, तो अगर आपको पता होगा तो टेस्ला इज वर्किंग वेरी हेविली इन रोबोट्स एंड रोबोटिक्स फील्ड, करेक्ट। टेस्ला के खुद के रोबोट्स आ रहे हैं who are going to perform very complex tasks as a human, right? Personalized AI, tailored AI experiences, जैसे कि मैंने कहा कि specific to niche, okay, personalize करना किसी भी task को, that will be done by AI, and ethical AI, which is transparency and fairness in AI। तो ये जो लास्ट पार्ट है, इस पे अभी काफी ज्यादा वर्क होना बचा है, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े लीडर्स को दैट दे आर समवॉट अगेंस्ट एआई। आपने देखा है, अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, बट दे आर वेरी कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू एआई। आपने भी सुना होगा कि यार एआई तो कभी कभी लिमिट के बाहर चीजें कर लेता है, विच शुड नॉट बी विच इट शुड नॉट बी ऑथराइज टू डू, करेक्ट। एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, किसी को पता है वो मूवी का नाम? which showcase the ethical concerns around AI, although उसका फोकस वो नहीं था, बट although it was just a Bollywood movie, बट उसमें वो वाला पार्ट प्रेजेंट करा गया था। किसी को याद है, किसी ने देखा है वो मूवी तो बताइए। 2 साल, 2 साल के अंदर आई थी आई गेस।
CTRL CTRL क्या है भाई? कंट्रोल कंट्रोल का शॉर्टकट है CTRL। मूवी नेम, हाँ मूवी नेम, व्हाट्स द मूवी नेम? ओके, एनीवन? चलिए, आप सेशन के एंड तक बता सकते हो मुझे, ठीक है? यू कैन टेल मी बाय द एंड ऑफ द सेशन व्हाट्स द नेम ऑफ द मूवी। ओके, जब तक आप सोच सकते हो, विच फोकस्ड ऑन द रोबोट्स के जो डाउन साइड हो सकते हैं व्हेन इट हैज एक्स्ट्रा पावर। ओके, तो या चलिए लेट्स गो अहेड टॉकिंग अबाउट द रोड मैप टू बी इंडस्ट्री रेडी। ओके, सो दिस इज, अच्छा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, क्या बात है, ये तो सॉन्ग का नाम है आई थिंक। परफेक्ट, सो या दिस वाज द नेम ऑफ द मूवी। ओके, शाहिद कपूर की मूवी है, कृति सेनन एक्ट्रेस है उसमें। तो दिस वाज द मूवी। अगर आप में से किसी ने देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो उसकी एंडिंग है, इट इज अराउंड दिस एस्पेक्ट ओनली, विच इज रिगार्डिंग द एथिकल कंसर्न्स विद एआई। जिसने देखा है वो अग्री करता है कि कहीं ना कहीं उस मूवी में यही प्रेजेंट करा गया है कि एआई शुड हैव the access which it should deserve, not unnecessarily too much access to things, okay, or not too much capabilities to things. Okay, perfect. Now coming to the most relevant part of this entire session, which is the roadmap. क्योंकि सर आपने ये तो बता दिया कि क्या करना है, एआई क्यों जरूरी है, व्हाई इज एआई सो मच अ हॉट टॉपिक। ओके, सब लोग एआई की बात क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको क्लियर हो चुका है। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके टर्मिनोलॉजीज क्या है, उसके टूल्स क्या है। ओके, बट व्हाट इज द रोड मैप, हाउ यू कैन स्टार्ट विद दिस एआई जर्नी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ कोडिंग आने चाहिए। एंड जब मैं बेसिक्स ऑफ कोडिंग बोलता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पाइथन एंड एसक्यूएल की। ठीक है, अब आप में से काफी लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये सीखने की जरूरत क्या है जब एआई है आपके पास, जब एआई आपके लिए कोड लिख के दे सकता है तो इस सब की नीड क्या है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जब लैपटॉप्स आए, ठीक है, जब आप टाइप कर सकते हो, तो क्या नोटबुक्स जो आपका पेन पेपर का सिस्टम है वो पूरा रिप्लेस हो चुका है? क्या स्कूल में सब जन, फर्स्ट क्लास से लेकर सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, क्या सब लोग टाइप करते हैं? नो, राइट, दे स्टिल राइट इट ऑन पेन एंड पेपर। ठीक है, उसी तरीके से एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू लर्निंग कोडिंग, इट इज एन एनेबलर, इट इज अ कैटलिस्ट। कि अगर आप कुछ टास्क एक हफ्ते में करते थे तो आप 2 दिन में कर सकते हो, या 5 घंटे में कर सकते हो। तो इट इज नॉट अ एक्सक्यूज, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू लर्निंग टू कोड। ठीक है, आप में से काफी लोग उसको एक्सक्यूज जैसे लेते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। मैं स्पेसिफिकली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि जो लोग डायरेक्टली एआई से एक्सपोज हो गए हैं, जिन्होंने कभी अपना बीटेक में कोडिंग सीखा ही नहीं, डायरेक्टली फर्स्ट ईयर से उनको चैट जीपीटी मिल गया, उन्हें लगता है कि चैट जीपीटी इज एन ऑल्टरनेटिव टू लर्निंग टू कोड। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड लेट मी क्लैरिफाई दैट माई सेल्फ टू यू। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आपको पाइथन और एसक्यूएल नहीं आता है तो आपको एआई में काम करने का सोचना भी नहीं चाहिए। और ऑन द अदर साइड, अगर आपको एआई में आगे बढ़ना है तो पाइथन और एसक्यूएल आप बिना सोचे समझे पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो। ओके, बट मेक श्योर दैट दिस स्किल्स आर वेरी मच हैंडी टू यू। पाइथन के बिना आप डेटा साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते, इट इज द ब्रेड एंड बटर फॉर डेटा साइंस। एंड एसक्यूएल इज लाइक द मोस्ट बेसिक स्किल, ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू क्वेरी द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा, जब आप रेलेवेंट डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, तो आप उस पर डेटा साइंस कैसे परफॉर्म करोगे? आप उस पर डेटा एनालिसिस कैसे, आप उस पर एनालिसिस कैसे परफॉर्म करोगे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू से यस और नो? ठीक है, तो एसक्यूएल तो एक ऐसी स्किल है जो मैं बोलूंगा पाइथन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चलो पाइथन धीरे धीरे आप सीख सकते हो, लेकिन एसक्यूएल सीखे बिना आप एनालिटिक्स पार्ट में एंटर ही नहीं कर सकते। ठीक है, यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू गेट द मोस्ट रिलेवेंट डेटा, एंड पाइथन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू गाइस अगर आपको एआई फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है, मैंने पाइथन और एसक्यूएल अपने बीटेक के सेकंड ईयर में पढ़ लिया था, और मेरा बीटेक का सेकंड ईयर था ईयर 2020। ठीक है, सॉरी, ईयर 2019 में तो मैं ग्रेजुएट हो गया था, ईयर 2016। मेरा बीटेक 2015 से 2019 तक था, 2016 में मैंने ये स्किल सीख ली थी। ओके, आज से अराउंड 9 साल पहले। ठीक है,
जब मेरा बीटेक का सेकेंड ईयर था, तो सोचो आज ये कितनी ज्यादा रेलेवेंट होगी। जब मैं अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में, तब भी मुझे ये मस्ट था, तो आज के डे एंड एज में कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि हर ब्रांच, हर प्रोफेशन के लोगों के लिए ये मैंडेटरी है। इसलिए हमारी कंपनी ने, इसलिए मैंने हमारी कंपनी यानी कि मैंने ही ऑब्वियसली इस पे खुद के कोर्सेज क्रिएट करे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को ही ये पढ़ना है, इट्स अबाउट एवरीवन शुड नो दिस स्किल। ओके, सेकंड इज गेट कंफर्टेबल विद डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अब डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग के लिए सेम है, लेकिन इसके जो स्टेप्स है वो पहले डेटा एनालिटिक्स कवर करना है, फिर डेटा साइंस पे मूव करना है। ठीक है, तो द सेकंड स्टेप इज टू बी कंफर्टेबल विद डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर आपको नंपाई आना चाहिए, पांडास आना चाहिए और डेटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, कोई मुझे एक एक लाइन में बता सकता है व्हाट इज नंपाई, व्हाट इज पांडास एंड व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? एक एक लाइन में या एक एक वर्ड में बता सकते हो तो क्या चीज आप कब यूज करो, क्योंकि आपने नाम तो सुना ही होगा ये सब चीज का। लाइब्रेरीज, वेरी गुड। पाइथन लाइब्रेरीज, वेरी गुड। ठीक है, तो पाइथन ही नहीं आएगा तो पाइथन लाइब्रेरीज कैसे आएगी? इसलिए मैंने स्टेप 1 में पाइथन बोला है। अब आप रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि दीज आर लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन, दीज आर पाइथन की प्री रिटन लाइब्रेरीज जो आपको प्रोवाइड करी गई है कि आप ये मेथड लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और डेटा विजुअलाइजेशन इज लाइक आपको जब चार्ट्स बनाने हैं, आपको बार ग्राफ बनाना है, डेटा को विजुअलाइज करना है, इसमें आपका टैबलो आ जाता है, इसमें आपका पावर बीआई आ जाता है। ओके, तो ये सभी स्किल्स मैंडेटरी है। यहाँ मैं जितनी स्किल्स बोल रहा हूँ स्टेप 3 तक के, ये आपके लिए, सॉरी स्टेप 2 तक के, ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप सीरियस हो एआई में, तो ये स्किल्स पहले आपको कैसे भी करके एक्वायर करनी है, चाहे आप कहीं से भी करो। ओके, बट मेक श्योर ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब इसमें आप अपनी करियर चॉइस ले सकते हो कि आपको क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, जिसको हम क्लासिकल एमएल बोलते हैं, उस डायरेक्शन में जाना है, या आपको डीप लर्निंग साइड जाना है जहाँ आप न्यूरल नेटवर्क से डील करते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से डील करते हो। दैट इज योर प्रेफरेंसेस। एंड देन यू हैव टू डाइव डीप इनटू जनरेटिव एआई, जहाँ आप एलएलएम्स की बात करोगे, चैट जीपीटी, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं एज अ इंजीनियर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एज अ एंड यूजर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एक डॉक्टर होते, अगर आप एक लॉयर होते, तो मैं आपको बोलता कि आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से स्टार्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहीं पता होना जरूरी है कि चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है, उसको कैसे आप फाइन ट्यून कर सकते हो, उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने नीड के अलावा। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन आप एक स्टूडेंट हो, एंड दैट टू इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, एंड दैट टू विद इन दैट आईटी एंड सीएस। तो ये सभी स्किल्स, ये पूरे स्टेप्स 4 तक के आपके लिए मैं मैंडेटरी है बोलूंगा। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू, जो मैं स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हुए देखता हूँ। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड अप्लाइंग एआई इन रियल लाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप चैट जीपीटी मत यूज करो। द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज कि साइड बाय साइड आपको स्किल्स एक्वायर करनी है, दैट विल हेल्प यू फर्दर इम्प्रोवाइज, फर्दर कस्टमाइज द एआई टूल्स दैट यू आर हैविंग। बिकॉज जो एआई टूल्स बनाए गए हैं वो तो डॉक्टर भी उसी तरीके से यूज कर रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हो, एक लॉयर, एक सीए, सब आपसे बेटर यूज कर सकते हैं वो टूल्स को। तो लेकिन अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो, तो आपके पास एक पावर है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड इट एंड देन टू मॉडिफाई इट। ओके, awesome. So this is where, guys, I would like to introduce the special offer, because I'm like यानी मैं काफी ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ आप सभी से। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, एंड मुझे पता है कि कितना ज्यादा मिस गाइडेंस अवेलेबल है अक्रॉस दी इंटरनेट, एंड कितनी ज्यादा लैक ऑफ गाइडेंस है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्पेशल ऑफर प्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, विच इज टू गेट अ फ्लैट 25% ऑफ ऑन आर इंटायर एआई कोर्सेज बंडल, जो कि मैंने आपको मैंडेटरी स्किल्स बताई है। अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगा कि आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन प्लीज पढ़िए। ठीक है, इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी इन टूडेज डे एंड एज फॉर यू टू लर्न दी स्किल्स। ओके, इसको एक करिकुलम के जैसे मत देखिए, इसको एज अ स्किल्स देखिए जो कि मैंडेटरी है। ओके, तो इन ऑल कोर्सेज बंडल वी हैव ऑल द स्किल्स दैट आई हैव मेंशन। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्किल्स पढ़ना चाहते हो कि सर मुझे एसक्यूएल बहुत अच्छे से आता है, तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि आप अननेसेसरली मेरे कोर्स में या हमारे कोर्स में या किसी भी कोर्स में एनरोल करो,
अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल पढ़नी है, लाइक आपको एसक्यूएल बहुत अच्छे से आता है लेकिन पाइथन नहीं आता है, तो प्लीज टेक अ वेरी रेलेवेंट पाइथन कोर्स। कहीं से भी पढ़िए, लेकिन मेक श्योर कि आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो इफ यू वांट टू एनरोल टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल कोर्सेज, we have a 15% off for limited period time and you can use the code SVP15। एंड यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि प्लीज डोंट शेयर दिस कोड एनीवेयर एल्स, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आप सभी के लिए एसवीपी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए हैं हमने, एंड इट इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आप शेयर करोगे तो आप ही के फ्रेंड्स का लॉस होगा, क्योंकि देन दे विल नॉट गेट अ चांस टू एनरोल एंड यूज दिस कोड। ठीक है, ये कूपन कोड आप जब चेकआउट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। We have the feature of refer and earn. So basically, this is not earning money. Okay, we don't believe in making students earn money. Okay, the money part is replaced by coins. तो अगर आप हमारे कोर्सेज को कंप्लीट करते हो, अगर आप हमारे कोर्सेज को रिफर करके खुद कंप्लीट करते हो, तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, जिसके बेसिस पे यू कैन गेट द नेक्स्ट कोर्स एट अ लेसर कॉस्ट और मे बी फ्री। ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, हम आपको अपस्किल कराना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि हम आपको हम आपको अर्न करके देंगे अगर आप हमको स्टूडेंट्स लाते हो तो दैट्स व्हाई आई हैव डिजाइन दिस मॉडल कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट अपस्किलिंग एंड प्लेइंग इट एज अ गेम। कि अगर आप खुद को अपस्किल करते हो तो आपको एक रिवॉर्ड मिले, जिससे आप खुद को और अपस्किल कर सको। ओके, सो दिस इज हाउ आई हैव डिजाइंड इट एंड वी हैव एन ऐप नेम्ड अपस्किल विद एजे, जो कि मेरे नाम का इनिशियल्स है आदित्य जैन। ओके, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन प्ले स्टोर एज वेल एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, जाके हमारा प्लेटफॉर्म है। And as I said, above offers are valid for only the first 15 users। ठीक है, ये वाला जो 25% ऑफ है ये first 15 users के लिए, because I want to keep it very very strict to 15 people। okay, तो be the first to grab it, because मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाए जिस पे हम फोकस ना कर सके, and it's completely pre recorded, ताकि आपका कॉलेज का करिकुलम आपको बिल्कुल इम्पैक्ट ना हो, बिकॉज कॉलेज की स्टडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तो मैंने अपने कॉलेज में भी हाईएस्ट सीजीपीए, सॉरी हाईएस्ट नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट सीजीपीए लाया था, विच इज 9.09। यानी 9 के ऊपर लाना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। आई वाज द सिटी टॉपर इन गेट, ऑल इंडिया रैंक 60 लाया था मैंने अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, मैंने प्लेसमेंट्स में अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक किया था, अमेजोन में सिलेक्ट हुआ था, तो मैंने प्लेसमेंट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कॉलेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और गेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब इसमें कोई खास बात ये नहीं है कि मैंने कैसे किया, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था एंड अभी भी नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, आई वुड से। खास बात ये थी कि मैंने हर एरिया पर फोकस किया। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पे भी फोकस किया। ओके, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कॉलेज की पढ़ाई काम नहीं आती है। जो भी आपको ये बोलता है वो बहुत बड़ा झूठ आपसे बोल रहा है। कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट्स में बैठोगे और जब आपके सीजीपीए के बेसिस पर आपको फिल्टर आउट करा जाएगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आई होप किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। आईआईटी बॉम्बे में क्राइटेरिया होता था कुछ कंपनीज का, एटलीस्ट 8.5 सीजीपीए होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी के इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ठीक है, सो आई डोंट वांट यू टू सफर फॉर दैट, इसलिए मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ गाइडेंस दे रहा हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई पे भी फोकस करना है और खुद को अपस्किल करने पे भी फोकस करना है, क्योंकि एआई के इंटरव्यूज तक आपको कंपनीज आपको कॉलेज हेल्प करेगा पहुंचने में। ठीक है, आपको पढ़ाने में कॉलेज हेल्प करेगा, लेकिन दोस्तों आपको खुद से एफर्ट्स लेने होंगे टू गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। ओके, टू बी इंटरव्यू रेडी, टू बी एन एआई प्रोफेशनल। इसलिए प्लीज अपस्किल योरसेल्फ। प्लीज डोंट टेक दिस कोर्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, बट प्लीज डू अपस्किल योरसेल्फ। कहीं से भी, किसी भी कोर्स से खुद को अपस्किल करो। दिस इज द होल एजेंडा आई एम हियर फॉर। ठीक है, मूविंग अहेड, you can connect with us. Okay, you can click on this link. Here we have all the social media handles that we are currently active with. Almost all the handles are manageable by me only, because मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को कोई गलत गाइडेंस ना मिल जाए, इसलिए मैं पर्सनली सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। इनफैक्ट पूरे कोर्सेज मैंने खुद से बनाए हैं, पूरे कंटेंट मैंने खुद से बनाया। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे थॉट प्रोसेस से चीजें बनाई है, ताकि आप जब सीख रहे हो, इवन दो यू आर नॉट टेकिंग दिस कोर्स, आपको एक आइडिया है कि किस तरीके से अपस्किल करना है खुद को। ठीक है, किस तरीके से कोर्स को डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स आपके यूजफुल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अपस्किल योरसेल्फ इन दिस फील्ड्स, एंड प्लीज डोंट शेयर दिस कोड विद एनीवन अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज स्टूडेंट्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो, बट प्लीज डोंट शेयर इट अदरवाइज एल्सवेयर, क्योंकि ये मैंने स्पेसिफिकली आपके कॉलेज के लिए और आप सभी के लिए जो इस सेशन को अटेंड करने के लिए इतने एफर्ट्स लेकर आए हैं, उन्हीं के लिए ये रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी मिसयूज्ड बाय अदर्स। ओके, परफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई हैव अ चीट शीट ऑफ
65 प्लस AI टूल्स, यहाँ पर 35 प्लस लिखी है, लेकिन जस्ट लास्ट वीक हमने उसको 65 प्लस कर दिया है। तो दैट लिंक ऑल्सो आई हैव हियर, ओके, यू कैन चेक इट आउट। आप जस्ट इस पे क्लिक कर सकते हो एंड यू विल गेट एक्सेस टू दिस चीट शीट हियर, ठीक है। तो ये स्लाइड्स आपसे ऑब्वियसली शेयर करी जाएगी, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। टॉकिंग अबाउट द वेरियस कोर्सेज दैट वी हैव, अभी मैं आपको इसका ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस कोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस AI फ्री कोर्स, डेमो कोर्स, जिसमें मैंने खुद के लेक्चर्स के डेमो वीडियोस रखे हैं एंड इट्स कम्प्लीटली फॉर फ्री, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी कोर्स को एनरोल करो विदाउट नोइंग कि हाउ द कोर्स इज लाइक, ओके। आई डोंट वांट यू टू बी एनरोलिंग अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मेरे टीचिंग स्टाइल से या मेरे वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है। आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट एनरोल टू दैट, ओके, देन यू कैन टेक द एक्शन। बट अगर आपको मेरे इंटरेक्शन से समझ गया है कि नहीं सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली एनेबल टू द कोर्स विच एवर यू वांट टू, ओके। मैंने पाइथन सिंप्लीफाइड पे कोर्स बनाया है, जिसपे मैंने पूरे बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर किए हैं। एंड ये जितने भी कोर्स मैंने बनाया है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, हर चीज का कंटेंट मैंने खुद से लिखा है, हर चीज का वीडियो मैंने खुद से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं किसी भी और इंसान पे रिलाई नहीं कर सकता टू मेंटेन द क्वालिटी। मैंने बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म से पढ़ाया है, ठीक है। अपग्रेड, स्केलर, बहुत, यानी मैं नाम नहीं ले सकता कुछ प्लेटफॉर्म्स के। तो वहां से जितनी भी मेरे सीख थी, जो भी मैंने सीखा कि उनमें कितनी गैप्स है, कि स्टूडेंट वहां क्या मिस कर देते हैं, ठीक है। लोग 2-2 घंटे के लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो भी मैंने मिस्टेक्स देखी थी ये प्लेटफॉर्म्स पे, वो मैंने खुद के प्लेटफॉर्म में पूरी फुलफिल की है। मेरा कोई भी वीडियो 12 से 15 मिनट के ऊपर नहीं है। ऑन एन एवरेज मेरा हर वीडियो 6 मिनट का है, ठीक है, 6 से 7 मिनट का है, क्योंकि मुझे पता है कि अटेंशन स्पैन लोगों का इतना कम हो गया है कि वो 2-2 घंटे के लेक्चर्स तो बिल्कुल अटेंड नहीं कर सकते इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। सेकंड जो मैंने मेक श्योर किया है कि आपको पूरे कोर्सेज लेने की मैंडेटरी नीड नहीं है। अगर आपको सिर्फ एसक्यूएल में खुद को अपस्किल करना है, तो आप स्पेसिफिकली एसक्यूएल का कोर्स लीजिए, ओके। डोंट वेस्ट योर मनी इन एनरोलिंग टू सो मेनी कोर्सेज, क्योंकि बाकी जगह आप देखोगे जो 2-2 ईयर्स के प्रोग्राम होते हैं, उसमें आपको पूरे कोर्स में एक साथ एनरोल करना होता है, ओके। जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के आप कोर्सेज देखोगे, तो मुझे ये बहुत गलत चीज लगी कि यार अगर किसी स्टूडेंट को 4 स्किल आती है और उसे सिर्फ 2 स्किल सीखना है, तो उसको पूरे 7 स्किल्स का पूरे 6 स्किल्स का उसको मनी देना होता है, विच इज वेरी बैड, ठीक है। तो मैंने मेक श्योर किया है कि यार मैं एक एक मॉड्यूल अलग से भी रिलीज करूं, ताकि अगर किसी को सिर्फ एक स्पेसिफिक कोर्स पढ़ना है तो वो सिर्फ उसी को एनरोल करे, और उसके भी पैसे वेस्ट ना हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पैसे तो दोस्तों सभी के पास आ जाते हैं, लेकिन टाइम नहीं आता है। तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली एक एक कोर्स के लिए आपको ये क्रिएट किया है। द थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज कि आप किसी भी सीक्वेंस में इसको पढ़ सकते हो। जब आप किसी एक ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हो, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हीं की एक सीक्वेंस चलती है। मैंने बहुत जगह पढ़ाया है जहाँ आपको पहले 2 मंथ पाइथन पढ़ाया जाता है, फिर 2 मंथ एसक्यूएल पढ़ाया जाता है, फिर 2 मंथ टैबलो पढ़ाया जाता है। और किसी का अगर टैबलो का इंटरव्यू है, तो वो टैबलो के लिए 6 महीने नहीं वेट कर सकता। आर यू एबल टू रिलेट विद मी? क्या आपने भी ये सब चीजें नोटिस की है कि अगर आपका टैबलो का इंटरव्यू है नेक्स्ट मंथ, तो आप 6 महीने थोड़ी ना वेट करोगे उसके अपस्किल होने के लिए, राइट? तो इसलिए दिस मॉडल आई हैव प्रेजेंटेड वेयर यू कैन एनरोल टू द स्पेसिफिक स्किल जो आपको इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपको कॉलेज के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है एज अ असिस्टेंट, ओके। वट एवर आपके इंटरव्यूज के लिए रिक्वायर्ड है, आपको कहीं पर किसी को गाइड करना है उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो यू कैन एनरोल टू दिस स्पेसिफिक कोर्सेज, ओके। So we have Python simplified. We have advanced Python as well. Python simplified is for doctors, CA, lawyer, सबके लिए ये Python मैंडेटरी स्किल है, तो ये मैंने उस हिसाब से बनाया है। लेकिन अगर आपने Python कभी नहीं पढ़ा है, तो पहले आपको सिंप्लीफाइड पढ़ना है, फिर आपको एडवांस Python पे जाना है, जहाँ आपको मैप, फिल्टर, रेड्यूस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, कैसे छोटे छोटे कोड लिखकर बहुत अच्छे कोड लिख सकते हैं, वो सब मैंने पढ़ाया है। फिर एसक्यूएल पे आप जा सकते हो, फिर आप numpy, pandas को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ पाइथन पैकेज चाहिए, तो यू हैव दिस, जहाँ आपको पाइथन का बेसिक और एडवांस मिलता है। और अगर आपको पूरे कोर्सेज चाहिए, जो कि पूरा एक एआई का बेस है, ओके, उसके लिए यू कैन गेट दिस कोर्स एंड इट इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट आफ्टर योर 25% डिस्काउंट एडिशनल, ओके। दिस इज अपार्ट फ्रॉम 25% डिस्काउंट। तो दोस्तों मीन्स आप जाके बाकी कॉम्पिटिटर्स के कोर्सेज देखें, तो इट्स इन लैक्स, 2 lakhs। मैंने खुद ने कोर्सेज पढ़ाए हैं वेयर वी यूज टू चार्ज 2 lakhs 3 lakhs पर स्टूडेंट, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज वर्थ इट। मैं तो ये भी बोलूंगा कि 2 lakhs भी वर्थ इट है, अगर आपको मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, क्योंकि ये स्किल एक इन्वेस्टमेंट है।
ओके, किसी भी कोर्स को परचेज करोगे कभी भी लाइफ में तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखो। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, आप फीस दे रहे हो, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, कि वो सीख कर आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, आपकी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो 27 लाख पर एनम की थी, जो कि मुझे बीटेक से मिली थी, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि मैंने आईआईटी बॉम्बे चले गया था। आईआईटी बॉम्बे से जो मुझे प्लेसमेंट हुआ था वो मोर देन 40 लाख पर एनम का था। तो एजुकेशन इज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। योर स्किल्स आर एन इन्वेस्टमेंट, ओके, जस्ट टू गिव यू अ मोटिवेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एजुकेशन में तो कोई पढ़ाई यानी हमें तो हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिल पाएगी, राइट। मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बताता हूँ, आई हैव स्टार्टेड माई करियर विद लाइक 200 पर आवर बेसिस जब मैं ये स्किल्स पढ़ाता था, एंड वही क्वालिटी के स्किल्स पढ़ाता था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं था। एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड एट 36,000 पर आवर लेक्चर्स पर्सनली। मैंने खुद ने ऐसे लेक्चर्स लिए जिसका पर आवर मैं 36,000 चार्ज करता था, एंड इवन दैट इज लेस। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इवन दैट इज वेरी लेस, क्योंकि अगर आप एक ऐसी स्किल सीख पाते हो जिससे आपको मल्टी लैक्स की पर एनम की जॉब मिल रही है एंड आप बहुत ज्यादा अपस्किल हो पा रहे हो, तो यू शुड इन्वेस्ट इन इट। तो मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो लोग एजुकेशन को बहुत गलत नजर से देखते हैं, कि उनको पता ही नहीं होता कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन अपस्किलिंग, ओके। So this is the link, you can check it out, okay, you can just click here and these are the various courses available to you, ठीक है। जो कि मैंने स्क्रीनशॉट डाला है एग्जैक्टली वो यही वाला है, रिसेंट वाला। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कोई भी कोर्स आप लेते हो तो, ठीक है। इफ यू टेक एनी कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कंटेंट दे आर कवरिंग। या मैंने पूरा डिटेल में लिखा है व्हाट आर द कंटेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि यार कॉलम्स से कैसे डील करते हैं, क्योंकि पांडास इज फॉर टैबुलर डेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलम्स पे कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप रोज पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप डेटा को कैसे सॉर्टिंग कर सकते हो मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे। आपको पता होना चाहिए कि आप मिसिंग डेटा से कैसे डील कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने एक एक ग्रैनुलर लेवल पे पूरे कंटेंट को ब्रेक किया है, ठीक है। और यहाँ ड्यूरेशन भी लिखा है, ताकि आपको पता हो कि यार मेरे पास अगर सिर्फ 15 मिनट है तो मैं एक कंसेप्ट तो आज कवर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। उस वजह से मैंने ये डिजाइन किया है। आपको डेटा फ्रेम्स को कैसे मर्ज करते हैं, ओके, विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू ज्वाइन। एसक्यूएल में जो आप ज्वाइन पढ़ते हो, आपको मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को ग्रुप कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। बहुत सारे मिसलिनियस कंसेप्ट होते हैं लाइक कॉन्कैटिनेशन, कट, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट टाइम फंक्शंस, क्रॉस टैब, ये सब आपको पता होने चाहिए। कहीं से भी आप कोर्स पढ़ोगे मेक श्योर ये कंटेंट आप पढ़ो। दीज आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज। मेरे काफी सारे आईआईटी बॉम्बे के बैचमेट्स हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, लिंक्डइन में, ठीक है, ड्रीम इलेवन में, सभी मेरे कलीग्स हैं। मैं उनसे काफी रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करते रहता हूँ, और जो भी चीजें वो मुझे इनपुट्स देते हैं कि यार आजकल ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स में, वो सब मैं इसमें ऐड करते रहता हूँ। तो अगर आप इस कोर्स के पार्ट हो तो आपको अलग से कुछ पे नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपके पास अवेलेबल होगा। तो मैंने ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली वे में बनाया है। मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं देखता हूँ कि यार कैसे तो भी बस स्टूडेंट्स को एनरोल करवाना है। अगर आप इसमें एनरोल्ड हो, कभी भी मैं कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ता हूँ, मैं खुद से उसका कंटेंट रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर देता हूँ। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है उनको भी वो कंटेंट मिल जाता है विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, ओके। यहाँ पर मैंने मेल्ट पिवट एंड पिवट टेबल्स के कंसेप्ट भी कवर किए हैं, एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पॉइंट ऑफ दिस विच आई हैव कवर्ड, विच इज इंडस्ट्री केस स्टडी। एक एक्चुअल रियल लाइफ डेटा सेट पे आपको मैंने करके दिखाया है पूरा कि हाउ डज इट वर्क, ओके, हाउ डज थिंग्स वर्क। इनफैक्ट आई जस्ट शो यू कि आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए कहीं से भी, ओके, फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, मेक श्योर यू स्टडी दीज कंसेप्ट दैट आई एम अबाउट टू शेयर विद यू, ओके। एक सेकेंड, मैंने एक डॉक के लिए लेके आया है। ओके, आई होप यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन, ठीक है, ओके। सो दिस इज जो आपको कोर्स में पे करने के बाद मिलता है। ऑब्वियसली आप लोग के लिए मैं ये डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस दिस विदाउट पेइंग, बट ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर यू गाइस, ओके। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा 70 पेजेस का डॉक्यूमेंट खुद से क्रिएट किया है, आपको दिखेगा कहीं तो भी, सी हियर 71, राइट साइड में देखिए 2 आउट ऑफ 71। सो इट्स अ 71 पेजेस डॉक्यूमेंट जो मैं रोज डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इसमें ऐड करते रहता हूँ।
तो यहाँ मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, व्हाट इज डीबीएमएस, एक एक लाइन में, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को एक दो लाइन से ज्यादा याद नहीं रहता। एंड जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे भी पता है कि यार अगर स्टूडेंट ने ये एक दो लाइन बोल दिया तो बस दैट्स मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा अगर उसको नहीं पता हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एंट्री लेवल जॉब में एंटर कर रहे हो, तो आप जॉब में आने के बाद बहुत सारी चीजें सीखोगे, बट अभी नहीं पता होगी आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से क्रिएट की है। टेबल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। मैंने कुछ सैम्पल डेटाबेसेस लेकर कीज का कंसेप्ट पढ़ाया है, फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है। कमिंग टू द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, मैंने इसको पूरा एक केस स्टडी के फॉर्म में क्रिएट किया है। तो जहां से भी आप पढ़ोगे, मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिकल वे में पढ़ो कि इंडस्ट्री में ये चीज कैसे यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां भी मैंने कोई भी कंसेप्ट पढ़ाया है वहां मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ाया है कि आपको एक डेटा सेट लोड करना है एंड यू हैव टू रिट्रीव द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। ये मेरा फर्स्ट क्वेरी है पूरे कोर्स का, एंड यहाँ मैंने एक एक चीज सिखाई है। फिर मैंने बताया है कि आपको कैसे वेयर क्लॉज इसमें इंट्रोड्यूस करना है। फिर मैंने सिखाया कि आपको कैसे लिमिट इसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करे हैं। मेरे 10 साल के एक्सपीरियंसेस से मैंने आईटी बॉम्बे में भी पढ़ाया है। तो जो जो मुझे लगता था कि यार स्टूडेंट्स ना एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझते हैं, तो वो चीजें मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, अगर आपको वेयर के साथ लिमिट यूज करना है तो कैसे करोगे, फिर मैंने हर क्वेरी का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो मेक श्योर कि कहीं से भी आप पढ़ो, इतने डिटेल में पढ़ना उसे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल कॉमनली यूज फंक्शंस जो होते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं इंटरव्यूज में फ्रेशर्स से। तो लोअर फंक्शन आपका आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कंटेंट क्रिएट किया है। आप देखोगे हर चीज क्वेरी के फॉर्म में है। नो अननेसेसरी स्लाइड्स, नो अननेसेसरी थ्योरी, नो अननेसेसरी कंटेंट, बिकॉज आई नो कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है अपने आप को अपस्किल करने के लिए। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एंड जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ यार, ये तो किसी भी कंपनी में डे टू डे बेसिस पर रिक्वायरमेंट होगा। लाइक व्हाट इज द टोटल सैलरी एक्सपेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, या किसी कंपनी चले जाओ, वहां का एचआर को ये क्वेरी की जरूरत होगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल कोर्स। व्हाट इज द टोटल एंड एवरेज सैलरी फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड हायर एडिट। ठीक है, सो एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल। फिर मैंने जॉइंट्स का कंसेप्ट पढ़ाया है। ओके, हर जॉइंट पे मैंने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाया है, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द कोर्सेज। जैसे कि ये पांडास के लिए मैंने नोटबुक दिखाई है यहाँ। ठीक है, दिस इज द इंटायर नोटबुक जो आपको कोर्स में मिलेगी। ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये पे करने के बाद मिलती है लोगों को। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा कोड मैंने खुद से लिखा है अलॉन्ग विद ऑल द वैलिड कमेंट्स। मैंने सब जगह जो जो रेलेवेंट कमेंट्स है वो ऐड किया है, खुद से एग्जाम्पल्स क्रिएट करे हैं। और जो मेरे कोर्सेज के वीडियो है उसमें मैंने ये लाइव लिखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके पढ़ा देते हैं। इससे आपको ये नहीं पता चलता है कि सर ने ये क्यों लिखा था, ये क्यों लिखा था। तो हर चीज में अपने लेक्चर में लाइव लिखता हूँ। मेरे जितने भी लेक्चर्स है वो सभी लाइव कोडिंग के लेक्चर्स है। ओके, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। तो मैं बताते बताते लिखता हूँ कि नाउ आई विल क्रिएट दिस, अब हम ये करेंगे, अब हम ये प्रिंट करके देखते हैं क्या दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या आउटपुट आना चाहिए। तो एवरीथिंग आई हैव डन इन दिस एंटायर कोर्स। ओके, तो जिस तरीके से नमपाई का है उसी तरीके से पैंडास का भी है, उस तरीके से एसक्यूएल का भी है। सभी चीज मैंने उस तरीके से क्रिएट करी है। एंड जो मैं आपको इंडस्ट्री केस स्टडी बोल रहा हूँ वो आपको कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री के फॉर्म में पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, जो आपको खुद से पहले ट्राई करने हैं मेरी वीडियोस देखने के पहले, या मैंने एक आपको सैम्पल डेटा सेट क्रिएट करके दिया है। एवरीथिंग आई हैव डन माई सेल्फ टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज मेंटेन्ड। ओके, ऑसम। दोस्तों पहले तो ये बता दो, क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ, क्योंकि एकदम मुझे शांति लग रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ। Can you please confirm if I'm still audible and visible? Because I'll just take 5 more minutes and then I'll wrap up the session. आपसे कुछ टिप्स शेयर करके। Awesome, perfect. Okay, awesome. So this is one of the tools that I've created. ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसे टूल्स को क्रिएट करें खुद से। ठीक है, तो यू कैन गो थ्रू दिस टूल। दिस अ डेमो टूल दैट आई क्रिएटेड फॉर वन ऑफ द स्टॉक मार्केट कंपनी। ओके, मैं आपको यहाँ एक डेमो दे देता हूँ। तो these tools you can create once you are done with the course. Okay, एंड आपको आपको रियलाइज होगा कि हाँ दिस इज एआई, दिस इज एक्चुअल एआई। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि शो मी द डेटा, ठीक है, एक सैम्पल डेटा क्रिएट किया है मैंने, तो आपके पास ये डेटा है। अब आप इस चैटबॉट से पूछ सकते हो कि शो मी द स्टॉक्स दैट वर रिकमेंडेड ऑन दिस डेट। ओके,
एंड वो चैटबॉट इसका आपको रिप्लाई देगा. सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट टू सीक्वल बॉट, जो कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है. मैंने ही अराउंड 15 से 20 कंपनीज के लिए चैटबॉट्स क्रिएट किए हैं, क्योंकि एवरी कंपनी नीड्स दिस. ठीक है, तो आप पढ़ोगे इसके बारे में. दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट टू सीक्वल. आप यार ये भी देख सकते हो कि बैकएंड में उसने कौन सी क्वेरी को रन किया है. ठीक है, हो सकता है कि अभी ये रन ना करे, क्योंकि मेरी टीम इस पे काफी ज्यादा वर्क कर रही है. तो वी आर मेकिंग चेंजेस, बट स्टिल मैं आपको कुछ सैंपल्स बता देता हूँ. हो सकता है ये वर्क अभी ना करे, क्योंकि हमने इसका बैकएंड थोड़ा चेंज किया है रिसेंटली. ओके, वी आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग इट, बट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट चैटबॉट्स, एंड आई वुड से दिस इज हाउ यू शुड एक्चुअली क्रिएट चैटबॉट्स. तो मैंने इससे क्या पूछा था, शो स्टॉक्स रिकमेंडेड इन द लास्ट 2 weeks ऑफ जुलाई. तो आप देखोगे जो भी इसने रिकमेंड किया है डेटा में से, इतने सारे स्टॉक्स थे आपके पास, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, बट इसने आपको स्पेसिफिकली 15, 17 एंड 19 जुलाई के स्टॉक्स का डेटा दिया है. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज एन इंटेलिजेंट सिस्टम. यहाँ आप उसको एक ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो एक शॉप ओनर से कि वो एसक्यूएल क्वेरी लिखे. आप एक डॉक्टर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक एसक्यूएल क्वेरी लिखे. So this is why you need these skills, so that you can create such chatbots and you can present it to the business owners. Okay. So yeah, and yeah, this is all about it, guys. I hope that this session was useful to you. Thank you so much, and this is all from my side. Once again, I would try to repeat, please don't share this code anywhere else. Okay, I am trusting you guys that you will keep it specifically to your friends and family members who are attending and who are part of this college. And this is only limited to the first 15 users, because I want to make sure that only quality students join. Okay, so you can check it out, and if you want, this is the link to the website. You can just type learn.nextbigtech.com, okay, on the Chrome or anywhere on any of the platforms, and you can just click on courses and you will find these courses here. Okay, as simple as that. If you want to check out our official website, it is nextbigtech.com. Okay, so this is the website. You can go through this. We have a very big team. Even if you want to join our team, okay, we have so many people who are working with us, and yeah, these are our courses. Okay, so you can just check it out. This is the general guidance videos which will help you. Okay, so yeah, that's it about it. Thank you so much, guys, and yeah, that's all from my side. Thank you. Okay, so I planned ki I will share very less guidance, but this is how I work. Whenever I find some enthusiastic students, so I keep sharing the knowledge with them as much as possible. Okay, so yeah, thanks for staying till the end, and I wish you all the very best, guys. Thank you so much. I think we can wrap the session up. Sir. Yeah. Sir, we have some questions from the participants. Can you share it with me? Because I have internet. I will read for you. Sure. Sir, there is a question. How secure are AI systems against cyber attacks or misuse? What are your views on it? Okay. Again, I'll give a very short answer, but again, we can interact in detail. You can just connect with me on LinkedIn. So basically, I won't say AI की problem है about the security. It's the past of cyber security. तो हर कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो आपकी कंपनी में एक साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है जो आपकी कंपनी की सिक्योरिटी से डील करता है. तो बोथ आर वेरी सेपरेट थिंग्स. It's a role of cyber security expert to ensure that your AI tools are secure from the outside world. Okay. Yeah. Okay. And for remaining queries, maybe you can share it with me on LinkedIn. We can connect on LinkedIn, or anything is fine. You can connect with me on WhatsApp. Okay. Okay. Hello. Is it audible? Yeah, it's audible. Yeah. Thank you, Aditya. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Thanks for accepting our invitations and sparing your valuable time with us and valuable information to our participants as well.
Really very good insightful sessions you've delivered today. A lot many information. That information is very important as far as placement is concerned, right? So every student is to be ready with the basic concept that you already narrated about the Pythons and SQL around. These things are very much important. Yes. One question from my side, that nowadays these generation are Gen Z generation, right? And these students Yeah. are very much heavily dependent on chat GPTs, right? Yeah. So when these students are going for the placements and they are very much dependent on GPT, so when they appeared for the coding test, so lot many students are what we can say, they will back out from that particular stream, or we can say lot many students are cut out from that. So what Correct. your thought process for this? Sir, means you have asked the exact point I was trying to convey at the beginning, that students should use it as a catalyst, as a enabler, okay, as a friend. They can seek help from, but they need to do the 80-90% of the background work themselves. In Right. fact, मैं तो ये भी बोलूँगा कि when I take interviews, I make sure that the student should write code on a text editor, like a Google Doc or a Notepad, so that even the syntax is something that they don't copy from somewhere else. Okay. Exactly. So this is when I appeared for Google interview, so my first interview at IIT Bombay was from Google, and they asked me to write code on Google document, so that every syntax and all, I don't get suggestions from the tool, right? Editors, So this yes. is the level at which companies expect from, and that's why that's the reality that such students struggle to get into good companies. Okay, Sure. so we will often see that the ones who are working at Google, Microsoft AI, and even I have worked at such companies, they recruit the students who know things themselves. Okay, once you are good at coding, then obviously you can use ChatGPT and all for a certain task. Even I use ChatGPT very heavily for my tasks, but it's not an alternative to learning to code. Okay, learning to code is a mandatory step. Okay, it's like what I can say. You have a two-wheeler with yourself. Okay, you should learn how to drive a two-wheeler, but you would only drive it when it's needed. Okay, Exactly. but you should know how to drive in order to make sure that you are sitting with the driver. Okay, because anything can happen in an emergency situation. So you should first learn how to drive, and then you can rely on someone to drive it for you, like that. Okay. Exactly. Yes, participants, if you're having any questions, so please, as we can connect with Aditya on LinkedIn as well, Sure. And right? even on WhatsApp. And once the students are enrolled to the course, I myself give them one-on-one guidance. Right, So sure. that's the best way to interact, because most of my time goes into this students only, because those who are very serious about upskilling themselves, I dedicate most of my time with them. I give personalized guidance to them. That's why I've limited it to very less number of students. So yeah, but feel free to interact wherever possible. Okay. Yeah, Definitely, Aditya. Very soon we will meet physically at our institute, right? definitely, Definitely, I'll definitely. invite you. Okay. Sure, sure. I've been to the college for a Yes, for a yes, physical yes. You session. came. Yeah. Yeah, yeah. I know, I know. Okay. Yes, Shreya, over to you. Oh, okay, thank you, Jagdish, sir. As we come today to the close of today's program, it is my privilege to extend the vote of thanks. On behalf of the Department of Information Technology and the CSI student chapter, I sincerely thank our esteemed speaker, Mr. Aditya Jain, for sharing his expertise and inspiring us with practical insights into artificial intelligence and career success. We are also deeply grateful to our head of department, Dr. Shabana Pathan, for her constant support, encouragement, and the vision that guide all our academic and co-curricular endeavors. A heartfelt thanks as well to our faculty coordinator, Jagdish Pimpli sir, whose efforts and coordination made this event possible. Finally, I thank all our enthusiastic participants for being with us today and making this webinar a success. With this, we officially conclude the session, wishing you all the very best in your future growth. Thank you and have a wonderful day ahead. Okay. Okay. Thank you, Aditya. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. And I Thank you. wish you all Thank the you. very best. Please Thank keep upskilling yourself and have a bright future. you. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you, sir.